جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ ہر رشتے اور ہر محبت کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہوتا ہے۔ وہ وقت گزر جائے تو وہ رشتہ اور محبت ختم ہو جاتی ہے۔ مرد اپنی نگاہ نیچی نہیں کرتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، لیکن دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کے حوصلہ مت ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے آپ سے ہی خوف کھانے لگیں گے اگر وہ اپنا کردار آئینے میں دیکھ لیں۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ چاروں طرف شور مچاتی دنیا میں خاموشی کا ایک راستہ اختیار کر کے چلتے رہنا آپ کو کامیابی کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا، تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اپنے فائدے کے لیے کام کرنے والا انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ کسی سے دلیل میں جیتنا چاہتے ہیں تو کچھ دیر خاموش رہیں اور پھر نتیجہ دیکھیں۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوں۔ بہترین گفتگو ہمیشہ وہی ہوتی ہے جس میں الفاظ کم اور دوسروں کے لیے سبق زیادہ ہو۔ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، یہ ایک سستی دوا ہے۔ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں بہار لاتی ہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ جن لوگوں کی سوچنے کے عمل پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، ان کی آزادی برباد ہو جاتی ہے۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ جوانی میں ہی فرعونیت چھوڑ دی جائے۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ بے خوف رہنے کے لیے با کردار ہونا پڑتا ہے۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو، اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے، تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔
जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और दूसरे दिन तुम्हारे खिलाफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, मगर फिर भी इंसान दूसरे इंसान के दर्द को नहीं समझता। लोग किताबों की तरह हैं, हर एक की अपनी कहानी है। अपने आप को माजी का कैदी ना बनाओ, वो जिंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सजा नहीं। अल्लाह को खुश रखना है तो 3 लोगों को खुश रखो, गुरबा, मसाकीन, दुखी और बेसहारा को। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे या मुफाद की तवक्को नहीं होती। नफरत कमजोर मोहब्बत के वजूद से जन्म लेने वाली वो माजूर औलाद है जिसे पालते पालते नस्लें उजड़ जाती हैं। ये सच है कि हम खाक से बने हैं और दुनिया भी खाक से बनी है, लेकिन गर्दो गुबार के शोले अब भी उठ रहे हैं। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख हैं जो उसको कभी भरने नहीं देते। समझदार इंसान ज्यादातर तन्हाई पसंद और बेवकूफ इंसान हमेशा हजूम पसंद होगा। गम से फौरन निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जब आप गम में मुब्तला हो तो अपने अंदर एक ऐसी जगह तलाश करें जहां खुशी हो, तो वही खुशी गम को जला देगी। हमारे यहां मस्जिदों से ज्यादा अस्पताल में अल्लाह को सच्चे दिल से याद किया जाता है। आदमी अच्छा था, ये लफ्ज सुनने के लिए मरना पड़ता है। जब तक तुम्हारा गरूर और गुस्सा बाकी है, अपने आप को नेक लोगों में शुमार मत करो। हम अच्छा होने या अच्छा बनने के बावजूद भी किसी न किसी कहानी में बुरे जरूर होते हैं। जो तुमसे ताल्लुक रखना पसंद ना करता हो, उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करो। गम ना करो, खोई हुई चीज दूसरी सूरत में वापिस मिल जाती है। दौलत वरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनका जवाब खामोशी होती है। खुदा तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत को चुना। अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह किसी के आगे झुकने नहीं देगा। जब किसी को रिश्ता खत्म करना हो तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म करता है। इंसान उम्र से नहीं बल्कि फिक्र से बूढ़ा होता है। किरदार एक ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को काट सकता है। अकेला रहना पूरी सोहबत में रहने से बेहतर है। अगर जो चाहते हो वो नहीं मिला, तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। ये तबाहकुन सोच अपने अंदर से निकाल दो कि मेरे हालात नहीं बदल सकते। तुम जिससे नफरत करते हो उससे हमेशा होशियार रहो, खामोश रहो। सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। जीना चाहते हो तो परिंदों से सीखो, क्योंकि जब वो चहकते हैं तो उन्हें परवाह नहीं होती कि उनका चहकना किस किस को नागवार गुजरता है।
जिंदगी में जब भी तुम तन्हाई महसूस करो तो याद रखो, खुदा ने सबको दूर कर दिया है ताकि पीछे सिर्फ तुम और वो रह जाए। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो कि सोहबत में बड़ा असर होता है। मुअज्जिज बनना चाहते हो तो दूसरों की इज्जत करो, क्योंकि ये काम मुअज्जिज बंदा ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। करोड़ों लोगों के दरमियान अकेला रहकर इंसान जान जाता है कि इस दुनिया में वो एक ही है जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, और वो उसका रब है। बोलने का हक छीना जा सकता है मगर खामोश रहने का नहीं। जुबान खोलने से पहले सोच लो कि दुनिया आपसे ज्यादा अक्लमंद है। कोई भी इंसान अपने मर्तबों की वजह से अजीम नहीं बनता, बल्कि किसी भी इंसान को अजीम उसका किरदार बनाता है। इंसान ने महसूस करना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसे उन चीजों से मोहब्बत हो गई है जिनमें एहसास नहीं। जब जमाना अमन का हो और हालात जंग जैसे हों तो समझ लेना अजाब करीब है। झूठ बोलने के बाद एक अच्छे हाफजे की जरूरत होती है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको बहुत सारे और झूठ बोलने पड़ेंगे। आपको नाकाम देखने के लिए ये 3 लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये सबसे खतरनाक हैं। नंबर 1, आपसे हसद करने वाले। नंबर 2, आपके वो दुश्मन जिनको आपने कभी जिंदगी में शिकस्त दी हो। नंबर 3, आपसे मुनाफकत रखने वाले। जिंदगी में 2 लोगों से दूर रहना, एक मसरूफ और दूसरा मगरूर, क्योंकि मसरूफ अपनी मर्जी से बात करते हैं और मगरूर अपने मतलब के लिए याद करते हैं। तालीम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जहालत को जान लेने का नाम है। लोग दीवारों की कान से तो डरते हैं मगर फरिश्तों के कलम से नहीं। इंसान को इतनी समझ जरूर होनी चाहिए कि उसे कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। तन्हाई कुछ लोगों को बर्बाद कर देती है और कुछ लोगों की कामयाबी का जरिया बन जाती है। अपनी जात को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ लेने के बावजूद भी ऊपर से बिल्कुल पुरसकून होता है। जिंदगी में एक बार मोहब्बत जरूर करनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि क्यों नहीं करनी चाहिए। मुंह का सुनना छोड़ दो, आंखों का पढ़ना सीखो। लोगों से डरना छोड़ दो। इज्जत अल्लाह पाक की जात देती है, लोग नहीं। कोई भी इंसान अपनी सोच से मुख्तलिफ कभी नहीं बनता। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज होता है तो उसे पाकीज़ा लोगों की ऐब जोई में मशगूल कर देता है। अगर किसी की याद बार बार तुम्हारे जहन में आती है तो समझ जाओ कि वो शख्स भी तुम्हें याद करता है, क्योंकि दिल से दिल तक राह होती है।
درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ صبر دراصل یہ ہے کہ جو تکلیف تمہیں پہنچے اس پر احزاری نہ کرو۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ بعض تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ بانٹنے سے خوشیاں اسی طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔